मैम रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसलिए सॉरी। It's okay. यस। Assalamu alaikum everyone and warm welcome to all of you. So previously we were talking about the book Ikigai and मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग इस बुक को जो है वो करके आएंगे, प्रिपेयर करके आएंगे, so that हम लोग क्लास में इस बुक को डिस्कस कर सकें. So have you all prepared the book? आप में से जो लोग रेडी हैं प्रेजेंटेशन के लिए काइंडली लेट मी नो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. ओके, सो मैं आपका माइक अनम्यूट करने लगी हूँ. यू जस्ट हैव टू से मैम अनम्यूट द माइक. अनम्यूट द माइक. ओके रिफत, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ. टैप ऑन योर माइक रिफत. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? Alhamdulillah, ma'am. How are you? It's nice speaking to you again. Again, I have taken this course. If you remember ओह me. ऑफ कोर्स आई डू. एक कोर्स काफी नहीं था, सो यू हैव जॉइन मी अगेन. No, ma'am, आप इतनी अच्छी mentor है. You are so nice, so kind, and I wanted to groom this skill, so I have taken it ओके. again. Nice to hear you again, Rifat. Welcome to the course and welcome to the Thank you, class. ma'am. So today, Thank you, are you ma'am. going to give the presentation on Ikigai? Yes, ma'am. Before that, I would like to take one moment and Hmm. show some gratitude to all the teachers. Tomorrow will be the Teachers' Day. Oh, So, yeah. all right. Thank you very much, Rifat. That's very So happy thoughtful of Teachers' you. Day to all the teachers, including Advance. you, ma'am. Thank you very much, Rifat. You're such a sweetheart. Thank Thank you you. very much. Okay, so let's begin now the presentation. Yes, ma'am. The book is Ikigai, and yesterday, like the day before yesterday, when I gave you the entire demonstration on this book. So now I want you to tell me about the book in your own words. What is this book about? I have listened to a number of videos, including Urdu, Hindi, and English versions of the book Ikigai. So, Ikigai is a Japanese concept written by, if I can pronounce it correct, I have written the names. Yeah. Hector Gershia and Pugo Server. If I'm correct, correct me, ma'am, if it is wrong. I don't know. No, it's not wrong. No, it's wrong. Not Yeah. wrong. So the ikigai is a Japanese compound word. Iki means life and gai means meaning. So the reason of being or the reason for the existence, the purpose of life. So this book revolves around the four concepts, four questions that we have to find out. The four things: what we love, what we are good at, and what the world needs from us, from the thing that the work, the task that we do, and what we can be paid for. So with these four concepts, if we when these four concepts overlap, we find our ikigai, a balance of passion, mission, vocation, and profession.
Ikigai is not only about making money, it is about living a meaningful, happy, and useful life. This was the summary that ma'am you have given, but I have researched on it and I found some points about ikigai. So first of all, we have to find our ikigai by by um, by finding out our passion, that the thing that we love the most to do. Uh, So that's how we can find our ikigai. After that, there are number of chapters in this book. We have to. It is focused on being connected. We should not retire, or we should not stay. Um, what we can say, we should not uh, just waste our time. We should Hmm. engage ourselves in some activity. We should enjoy the moment, take it slow and enjoy the moment, whatever it is. After that I have to focus on it. I really need to focus on it. Eat light, stay healthy and fit. I really need to do it, exercise daily, and surround yourself with good friends, good people, smile and stay positive, reconnect with nature, give thanks, be grateful, whatever you get from life, be it from the people, be it from some other sources, like what we get from life, our job, food, good weather, anything it can be. Live in the moment and last, resilience in hardship. We should accept the challenges and face the challenges courageously. Thank That's you. very nice. You're most welcome. It was lovely to hear your insight. So tell Thank me, you. if I have missed it, what is your ikigai of life? Being a teacher, I am a teacher. Yes, you told me about that once. So do you believe that it's the only thing you want to do for the rest of like your life? Actually, this is my charging. I Huh, cannot acha. explain it, but It's something that makes you feel alive. yes, this is the Nice. purpose of life. Okay, then I Other should than I should that, also say a happy Teacher's Day to you, to a thank you, ma'am. passionate Thank person. you. Yes, ma'am. Yeah, Other you were saying than being something. a teacher, I family life is okay, but some other facts, the healthy aspects of my life, I am suffering from lots and lots and lots of things, but it is okay. So, yeah. Okay, nice, nice. Like there are some people who are happy, and there are some people who sound happy, and then there are people who pretend to be happy. I'm very glad that you are in the category who are happy and somehow they sound happy also. I don't know if you're Yes, pretending or ma'am. not, but it No, feels like ma'am. you're a happy person. Not You're at a all. charming I'm not person, even not pretending. I am happy happy from person inside. from inside out. Okay, that's Yes. very good. Thank you very much, Rifat. You have Thank you, made me ma'am. fresh by Thank connecting you. with me today. So, Yes, Jazakallah. ma'am. Thank Thank you, you very ma'am. much. And keep coming to the class. Yes, ma'am. I'm regular. You're a regular person. Yeah, that Yeah. I know. Thank you very much, Rifat. Okay, now Thank the you. next participant is Sehrish. Sehrish Hashmat. Let me unmute you just a second. Okay, Sehrish, tap on your mic, please. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Assalam. How are you? I'm fine, ma'am. My name is Sarish Hashmat Ali, and I'm married. On Hmm. I have 4 babies and a truck. और आई मैम मुझे ज़्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में। और ठीक है। मार्केटिंग भी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये सारे कोर्सेज़ जॉइन किए हैं। तो मैंने 2010 में अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था मे बी। ठीक। बहुत अच्छा किया आपने मैट्रिक इकिगाई कंप्लीट करके। इकिगाई
हाँ, अब मुझे इकिगाई के बारे में आप बताएंगी, लेकिन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में। इंग्लिश यूज करें लेकिन सिंपल सिंपल इंग्लिश में। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। गो अहेड प्लीज। इकिगाई इकिगाई मीन्स लाइक गोल्स मीन्स के आपकी लाइफ गोल्स क्या है मैम? व्हाट्स योर गोल्स? व्हाट्स योर मेक आप मुझसे हैप्पी? पूछ रही हैं समथिंग दैट नहीं मेक्स यू नहीं, हैप्पी। बता रही हूँ आप नहीं बता रहे। इकिगाई मीन्स इकिगाई मीन्स व्हाट्स योर मेक हैप्पी? एंड चार चीजें हैं ना, एंड आपने मुझे व्हाट्स दो योर बताई लाइफ हैं। गोल्स? जी जी। एंड व्हाट योर लाइफ गोल्स? ये तो आप मुझे एंड बता योर चुकी हैं। हेल्थ? एक दुनिया के बारे में योर भी है। हेल्थ? जी जी, और हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया था। और इट्स मैम, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मेरी भी बताना आ बिल्कुल रहा। अच्छी नहीं है, डोंट वरी, आप मुझे बताइए। इट्स वोकेशन। इस वोकेशंस मींस आपको वोकेशंस में क्या करना अच्छा लगता है? इट्स योर इकिगाई। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, और जो मैं बता रही हूँ अब आपने उसको खुद ही बताना है मुझे एक दफा दोबारा। ठीक है, सुने फिर बताएं, सुने फिर बताएं, ऐसे गेम खेल रहे हैं हम एक। तो इकिगाई बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी का पर्पस फाइंड करते हैं। आप इस पर्पस को फाइंड करने के लिए आपने अपने आप से चार सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, व्हाट डू यू लव टू डू। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करना पसंद होते हैं। जैसे कुछ लोगों को मछलियां पालना पसंद है, कुछ को गार्डनिंग करना पसंद है, कुछ को म्यूजिक सुनना पसंद है, कुछ को लिखना पढ़ना पढ़ाना पसंद है। तो खुद से पूछें ऐसी क्या चीज है जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता है किसी चीज को करना। यानी आपने अगर 12 घंटे काम किए हैं ना, और उसमें से आप आधा घंटा वो काम कर रहे हैं जो कि दुनिया ने आप पर थोपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 घंटे की ड्यूटी कर ली एज अ नर्स, या आपने 7-8 घंटे की ड्यूटी कर ली किसी ऑफिस में, लेकिन आपने घर आके टेरेस पर बैठकर 30 मिनट के लिए वो काम किया जो आपको करना अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि वो जो 30 मिनट है उसकी वजह से जो पूरा गंदा दिन आपका गुजरा था, बिजी दिन गुजरेगा, वो सब गायब हो जाएगा। सो आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव टू डू। ठीक है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। फिर अपने आप से पूछें कि इस चीज के लिए कौन सी स्किल है, इस चीज से रिलेटेड वो कौन सी स्किल है जिसमें आप अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे बुक रीडिंग पसंद है और राइटिंग पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद भी एक अच्छे रीडर या राइटर बन सकते हैं। यानी आप खुद भी लिखाई कर सकते हैं, ये आपकी एक स्किल है। क्योंकि लिखा हुआ समझ में तभी आता है जब आप खुद एक अच्छे लिखा रही हो। सो योर स्किल इज राइटिंग। फिर आप पूछें कि अपनी स्किल को इस्तेमाल करके, इस पैशन को इस्तेमाल करके मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो, समथिंग दैट दिस वर्ल्ड नीड्स। तो इस दुनिया में सैकड़ों तादाद की लोग में टीचर्स मौजूद हैं, अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। सो यू कैन बी अ गुड राइटर फॉर देम। आप उन्हें कुछ पढ़ा सकते हैं अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं। लास्टली, दुनिया की नीड्स को पूरा करते करते देखिए कि आपको फाइनेंशियली ये चीज़ कैसे बैकअप कर सकती है। इस चीज़ से आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं। सो आप किसी को पढ़ा सकती हैं, ट्यूशन दे सकती हैं किसी को, आप किसी स्कूल में जाकर जॉब कर सकती हैं। अगर आपको रीडिंग राइटिंग का पढ़ाने का इतना ही शौक है तो आप अपने करीब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ को। ये चारों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है, जिसमें से आपको पैसे भी मिलेंगे, खुशी भी मिलेगी, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, और आप दुनिया की हेल्प भी कर रहे होंगे। तो इकिगाई इन चारों कॉन्सेप्ट्स को मिलाती है आपस में। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, यस। अगर आपको अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढना है तो आपको क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे इंग्लिश में बताएं, सिंपल इंग्लिश में। बेशक 3 क्लास के स्टूडेंट वाली इंग्लिश में बता दें। आई नीड माई लव मीन्स के मुझे क्या चीज पसंद है। हम्म। एंड आई नीड माई गोल। आई नीड रिसर्च माई गोल। ओके, यू नीड टू रिसर्च ऑन योर गोल, फाइन, नेक्स्ट। एंड आई रिसर्च नीड माई वोकेशन हैप्पीनेस। ठीक है, एंड आई नीड what will I do better? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस लिहाज से व्हाट इज योर इकिगाई।
I think book reading. वेरी गुड। सो आपने रिसेंटली कौन सी बुक रीड किया? मैम मुझे इस्लामिक बुक्स अच्छी लगती हैं। जबरदस्त। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अच्छी इस्लामी किताबें पढ़ते हैं या उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। सो गुड। आपने लास्ट टाइम कौन सी इस्लामिक बुक पढ़ी है? मैम मैं ना अबकरी का रसाला पढ़ती हूँ, उसमें ज़्यादातर जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबाए कराम वगैरह वाले सफ़ात हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक अच्छा सा फेसबुक चैनल बना लें या यूट्यूब चैनल बना लें और उसमें आपने जो कुछ पढ़ा है उसको अपने लफ्जों में बयान करें, तो क्या ये बात अच्छी नहीं होगी? बहुत अच्छी, लेकिन मैम मुझे अभी ना तो मोबाइल इतना यूज़ करना आता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल भी यूज़ कर रही हूँ। हम्म। सो तो पूरी आप गाइडेंस चाहिए थी इसलिए। गुड। तो आप गाइडेंस गाइडेंस लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सा मटेरियल मौजूद है, आपके टीचर्स मौजूद हैं। गाइडेंस लीजिए, और क्योंकि अब आपको पता है कि आपको ये काम करना अच्छा लगता है और आपने ये काम करना है, तो आप आज से शुरू कीजिए काम करना। डोंट यू थिंक कि आपको एक ही गाय मिल गई? यस मैम। चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ मैम द नेक्स्ट आपसे भी पार्टिसिपेंट। इंग्लिश भी अच्छी सीखनी आ रही है, लेकिन अभी तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ मैं ना। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। मेक श्योर करें कि डेली आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ें, कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुने और फिर उसको बोलें थैंक यू सो मिरर मच। के सामने खड़े होके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, थैंक यू वेरी मच। हु इज द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? लेट मी सी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि फिजा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फिजा, फिजा लेट मी फाइंड यू। और उसके बाद फिजा के बहुत सारे गिले शिकवे हैं। मुझे लगता है आज की क्लास मेरी इसी में गुजरेगी, पर कोई मसला नहीं है। अनम्यूट कीजिए खुद को प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फिजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए फिजा, आपने लेक्चर नंबर 4 लिया था। जी मैंने लेक्चर नंबर 4 लिया था। लेक्चर 4 तक मैंने सारी क्लासेस ली हैं। ठीक है, लेक्चर 4 के बाद आप डिसअपॉइंटेड हो गई हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती इस कोर्स से? जी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करके करूँ। ट्राई कैसे खुद भी करूँ? कर लूँ, कोई साथ हो फिर भी कर लूँ, मिरर के आगे भी कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही। अच्छा, तो कहाँ पे मुश्किल आ रही है? क्या आपको मेरे लेक्चर की समझ नहीं आ रही? क्या आपको होमवर्क नहीं करना आ रहा? लेक्चर लेक्चर की समझ भी आ रही है और आप समझाते भी बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों। अच्छा, तो मैं अपना एक्टिविटी डॉक्यूमेंट खोलती हूँ और हम देखते हैं कि आपने यहाँ से कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट की हैं। आपको मालूम है कि आपके जैसी आपकी जिस वक्त इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं, वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सो आप अकेली नहीं हैं इसमें, ठीक है? बहुत सारे लोग आपकी तरह इसी वजह से उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, वरना किसी को शौक नहीं है कि वो अपनी शामें जो है वो खराब करे एक टीचर को सुनने के लिए। बट बिकॉज पीपल वांट टू रियली वर्क ऑन देयर सेल्फ, उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है, सो इसलिए उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो सब आपकी तरह है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें से आपने कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट की हैं? एक्टिविटीज़ मैंने जो मेरा यानी कि अपने बारे में बताने वाली माई सेल्फ जो है माई सेल्फ वो कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्ट है। ठीक है। ठीक है, तो क्या आप मुझे 1 मिनट में बता सकती हैं इंग्लिश में अपने बारे में? जी बिल्कुल। गो अहेड प्लीज। माई नेम इज़ फिज़ा। ठीक है। आई एम 18 years old. I have cleared my second year. हम्म। I live in Rahimir Khan with my parents, brother and हम्म। sister. हम्म। It was my wish to do an English speaking course. Then I joined LWE. My dream is to become a businessman, बिजनेस to, वुमेन। to make my parents proud by becoming independent, to take them for Umrah, and to build a hospital where patients can be treated free of cost. My hobbies like I like I like यस। I like mathematics and physics. हम्म। Well, व्हाई हैव यू जॉइंड दिस कोर्स? टेल मी अगेन। I want to. आई वांटेड टू। It was my wish to do an English speaking course. Then I joined LWE. तो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड LWE, ठीक है।
अच्छा जी, रिसेंटली आपने कोई इंग्लिश शो देखा है नेटफ्लिक्स पे या कहीं पर भी यूट्यूब पर? इंग्लिश शो नहीं देखा, इंग्लिश हम्म। वीडियोस काफी देखी हैं। ठीक है, कोई कार्टून्स देखे हैं आपने मुझे? जी ठीक है, मुझे जल्दी से उस कार्टून्स के बारे में बता सकती हैं, उस एपिसोड के बारे में इन इंग्लिश? नहीं, चलें, कैरेक्टर नेम्स बता दीजिए। इंग्लिश में अगर मैं सच बताऊं तो मोबाइल फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था, उसके अलावा यानी कि ज़्यादा स्टडी के लिए यूज़ करती थी, तो कार्टून वगैरह ऐसे इंग्लिश मूवीज वगैरह बहुत ही कम देखी हैं। बहुत कम देखी हैं, ठीक है, कोई मसला जी। नहीं। अच्छा, अब अच्छा, देखें जितना। हाँ हाँ। जैसे अब मैं ये चाह रही हूँ कि अगेन से अगर मैं डेली एक लेक्चर ले लिया करूँ, जो जो आपने दिए हैं उसको डेली दिन में 2-2 घंटे देख के इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, और ये वाले जो हम्म लेक्चर है ये भी डेली लूँ, हम्म। तो ऐसे क्या बेटर हो सकता है? बिल्कुल बेटर हो सकता है। देखें, अगर आपने खुद को इम्प्रूव करना है ना, इवन अगर आपको वेट लॉस भी करना है, तो अगर मैं आपको कोई भी अच्छा सा कोच ला के दे दूं और वो आपको सिर्फ बताता रहे चीजें और आप उसको फॉलो ना करो, तो कभी आपका वजन कम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश भी काम करता है। अनलेस एंड अनटिल मैं आपको चाहे पूरी दुनिया का नॉलेज उठाकर दे दूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रूव एनीथिंग इन योर पर्सनैलिटी, इन योर सेल्फ। तो जरूरी है कि आप खुद से काम करें। 30 मिनट तकरीबन आपने इंग्लिश को सुनना है, फिर अगले 30 मिनट आपने शीशे के सामने खड़े होके जो कुछ भी सुना उसे अपने खुद से बोलने की कोशिश करनी है। जहां कोई मिस्टेक आ रही है, दोबारा से मोबाइल पे देखें, उसको सुने और उसको ठीक करें। तो जितनी ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस आप करेंगी, उतना ही ज्यादा जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें आपने खुद ही खुद की हेल्प करनी है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो पूरी दिन में एक दिन में 1 घंटा निकालें, जिसमें आपने तमाम एक्टिविटीज को कंप्लीट करके उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फिजा? और मतलब, आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है वो बहुत सारे लोगों से बेहतर है। मैनी जी पीपल कैन नॉट इवन से अ सेंटेंस, और आप मुझे पूरा आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन सुना दिया, सो दिस इज वेरी गुड। इट मीन्स कि आपके अंदर वो स्किल है, आपने सिर्फ उसको पॉलिश करना है, उसको टाइम देना है। ठीक है फिजा? जी इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं चाहूंगी कि आप जरा ज्यादा लाउड होके, कॉन्फिडेंस के साथ, खुश होके मुझसे बात करें। ओके। क्या ये पॉसिबल है? यस जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ इज देयर एनीवन जो मुझे इकिगाई के बारे में बता सके? Sadaf. Okay, Sadaf. Let me unmute you. डोंट वरी एवरीवन, आज की क्लास हमारी कन्वर्सेशनल इंग्लिश पर बेस कर रही थी, तो it was an interesting day. Yes, Sadaf. क्या आप मुझे सुन सकती हैं, सदफ? हेलो सदफ, आई हैव टू स्टार्ट माय लेक्चर, सो अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। चलें, सो गाइस द टाइम इज अप, लेट्स बिगिन द लेसन। लेसन को शुरू करते हैं। So my dear students, today we are going to learn about a technique called shadowing. हम shadowing के बारे में पढ़ने लगे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं यूजली उन लोगों की लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, जो लोग बेसिकली जिन्होंने इंग्लिश का बहुत कम नो हाउ होता है उन्हें। तो shadowing हमें हेल्प करती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आर स्पोकन लैंग्वेज। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एशिया से बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी अंग्रेज नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करूँ, तो जो टेक्निक मुझे हेल्प कर सकती है उसका नाम है शेडोइंग। सो वी लर्न टू साउंड लाइक अ नेटिव पर्सन। होता यह है कि आपको
सबसे पहले सिखाई जाती है, दिखाया जाता है कुछ कोई मटेरियल ऑनलाइन, आप उस मटेरियल को सुनते हैं, देखते हैं और फिर उसी की तरह बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कोई मूवी का डायलॉग दिखाऊं तो आप उस डायलॉग को सुनेंगे, देखेंगे, फिर मैं उसको पॉज करूंगी और आप उस डायलॉग को उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसा उस एक्टर ने उस वीडियो में रिपीट किया था या बोला था। दिस इज व्हाट शैडोइंग इज। Okay, so we are going to learn about the music of English, rhythm and stress. We are going to train our ears and our tongue to move together. ठीक है, दिस इज अ पावरफुल टेक्निक called shadowing, जहाँ पे आप अपने ears को और अपनी जबान को दोनों को साथ साथ ही काम में लेकर आते हैं। ठीक है, सो यू लिसन एंड देन यू स्पीक एट द सेम टाइम। शैडोइंग का मतलब होता है टू लिसन एंड टू स्पीक एट द सेम टाइम, एक एको की तरह। You copy the intonation, speed, and rhythm of a native speaker in real time. तो जो शख्स जिसको आप सुन रहे हैं, आप उसकी स्पीड, इंटोनेशन और रिदम को कॉपी करते हैं एज इट इज। तो पहले रिपीट करना है, लिसन देन स्पीक। सुने यानी कि पहले सुने डायलॉग में क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ हाउ कैन यू डू दिस टू मी, दिस इज द डायलॉग राइट। आपने उसको सुना एंड देन अगेन आपने उसी की तरह बोला, जोसेफ हाउ कैन यू डू दिस टू मी। जिस तरीके से वहां बोला गया, जिस इमोशन के साथ बोला गया, जिस स्पीड के साथ बोला गया, जिस इंटोनेशन और पिच के साथ बोला गया, आपने उस तमाम चीज को एज इट इज फॉलो करना है। शैडो का मतलब साया होता है, तो मैं जहां जाऊंगी मेरा साया मुझे वहां वहां पे फॉलो करेगा। सो साई की तरह आपने एज इट इज उन चीजों को फॉलो करना है। तो ट्रेन योर एयर टू कैच द नेचुरल पैटर्न। सबसे पहले आपने शैडो करने के लिए अपने एयर्स को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो आवाज के उतार चढ़ाव को उसी तरीके से पकड़ लें। ठीक है, अगर आपका स्पीकर ऊंचा बोल रहा है तो वो उसको उसी तरीके से कैच करें, अगर वो कम लो वॉइस में बोल रहा है, लो पिच में बोल रहा है, देन यू हैव टू कैच इट दैट मैनर। Improve the mouth coordination for smooth speech. अगर आपका मुंह है जब जिस तरीके से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको स्मूथली प्रोड्यूस करने में शैडोइंग हेल्प करता है। आपको इंग्लिश में सोचने की मदद करता है, ट्रांसलेशन की नहीं, सोचने की। और आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है। फ्लुएंसी मीन्स बिना रुके बात करना। स्टेप नंबर 1, वॉच एंड लिसन। हम एक रियल शॉर्ट क्लिप को यूज करेंगे नेटिव स्पीकर की। हम उस क्लिप को सुनेंगे, उस पॉडकास्ट को, शॉर्ट कन्वर्सेशन को सुनेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम शेडो करेंगे, उन लाइंस को बोलेंगे, बिल्कुल पॉज नहीं लेना, उनकी वॉइस को हमने एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे आपको क्लिप नहीं शो करवा रही, क्लिप आपको मैं सेंड करूंगी आपके होमवर्क के तौर पर, उसको सुनकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा 40 मिनट का सेशन रखा हुआ था, ये हमारा बहुत सा टाइम बातचीत में गुजर चुका है, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में लेकर जाऊंगी। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेन किया है, आपको कुछ होमवर्क दिया है मैंने। नेक्स्ट क्लास में जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो हम लोग वीडियो को सुनेंगे एक साथ और उसको प्रैक्टिस करेंगे शैडो करके। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है किसी को इस बात में। इंटोनेशन का मतलब है आवाज का उतार चढ़ाव। कन्वर्सेशनल इंग्लिश सेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके से मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। सो आई ट्राई माई बेस्ट के एवरी नाउ एंड देन मैं आप सबके साथ इसी तरीके से कनेक्ट हो सकूँ। ओके, सो लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक दूं तो आप उसमें थोड़ी सी डंडी मार जाएं। सो दैट इज समथिंग आई वोंट एक्सेप्ट। ऑलराइट, सो लेट्स start practicing it. Hi, how are you doing today? I'm great, thanks for asking. It's been busy week, hasn't it? अब आप देखें कि मेरे हर सेंटेंस में एक रिदम और टोन है जो मेरे एहसासात को, मेरे इमोशंस को शो कर रही है। हाय, हाउ आर यू डूइंग टुडे? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ क्यूरियोसिटी। ठीक है, आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब मैं उस सवाल का जवाब दे रही हूँ फ्रेंडली वे में और मेरा जो टोन है वो अप है, राइजिंग है। इमोशन नजर आ रहा है कि मैं खुश हूँ उस इंसान से बात करके, फ्रेंडली, मुझे फ्रेंडली तरीके से मैं उनसे बात करें। इट्स बीन अ बिजी वीक हैजंट इट। अब मैं उनको बता रही हूँ या मैं सुन रही हूँ कि वो मुझे बता रहे हैं कि दे आर इन डिस्ट्रेस, राइट। तो मेरा फ्लो टोन मेरी थोड़ी सी लो होगी। इट्स बीन अ बिजी वीक हैजंट इट, राइट। सो स्ट्रेस मेरी आवाज से झलक रहा है।
हमने ये वैसे टीचर टिप है, यानी मेरे लिए है कि मुझे आपको फोकस करके बताना है साउंड के ऊपर, मीनिंग के ऊपर नहीं, सो दैट आई कैन फील द बीट ऑफ इंग्लिश. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. प्रैक्टिस शेडोइंग टू साउंड मोर फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट. कोई भी इजी सी शॉर्ट क्लिप, ये आपके लिए है बच्चों. आपने YouTube पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, कुछ भी सर्च करें और कोई भी ऐसी क्लिप ढूंढ कर लाएं 10 से 15 सेकंड की, जो आप शेडो कर सकें. वो आपका फेवरेट सीजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं फ्रेंड्स, जो सीजन है फ्रेंड का, फ्रेंड्स, मैं उसको ओपन करती और उसका कोई भी एपिसोड 10 से 15 सेकंड का जिसमें डायलॉग बोल रहा है, मे बी जोई बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, रेचल बोल रही है, उसको मैं चूज करती, उसको प्रैक्टिस करके आती और वो मैं क्लास में प्रेजेंट करती. सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप कोई भी कार्टून हो सकते हैं, मूवी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, इंग्लिश में नेशनल जियो की कोई डॉक्यूमेंट्री बेशक ले लें. आपने सिर्फ स्पीकर को 10 से 15 मिनट, आपने उसकी आवाज को, उसके डायलॉग को, उसके तरीके को कॉपी करके आना है. सो हम क्या करेंगे कि हम वीडियो चलाएंगे, वीडियो की आवाज बंद कर देंगे, सो डायलॉग आप बोल रहे होंगे और पीछे वीडियो चल रही होगी. दिस इज व्हाट शैडोइंग इज. अब ये सारा काम आप लोगों ने करके आना है नेक्स्ट क्लास में, सो दैट थोड़ा सा आपका भी जो है वो माइंड बना हुआ हो, कॉन्सेप्ट बना हुआ हो. बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं वीडियो खुद भी चलाऊंगी अपनी क्लास में आपको सिखाने के लिए, और मैं खुद भी आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी और आप सब लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे. कोई भी क्लिप, जो भी क्लिप आपको अच्छा लगे. ठीक है बच्चों. अच्छा, और क्या होगा, मैं आप सबको 1-1 मिनट दूंगी. आप अपनी वीडियो खुद सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको पसंद में आए. कोई भी वीडियो, आपकी फेवरेट फिल्म हो सकती है, इंग्लिश में होनी चाहिए, सिर्फ शर्त मेरी इतनी है 10 से 15 सेकंड से ज्यादा ना हो, ताकि आप सब लोग मेरी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें, मुझे सुना सकें. चाहे मुझे 2 से 3 लेक्चर्स भी लेकर जाने पड़े, पर इस दफा मैं आप सबकी प्रेजेंटेशन सुनूंगी. ठीक है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोर्स जब आप लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाए. सो आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, और इस दफा मैं किसी भी इंसान को मिस आउट नहीं करूंगी. दैट इज माई प्रॉमिस. तो जब तक आप लोग खुद नहीं कहेंगे कि हम सब जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, वी आर ऑल डन, तब तक हम आगे किसी और टॉपिक पर मूव नहीं करेंगे. Thank you very much everyone for joining me in today. I hope that you all will work on shadowing and will come back more encouraged, more enthusiastic and more prepared. Jazakallah khair for joining me. Allah Hafiz.